اسپیکر کی رولنگ کے خلاف درخواست سپریم کورٹ میں کل سماعت ہوگی۔ پرویز الہی کی درخواست پر چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب، حکومت اتحاد کا فل کورٹ کے لیے پیٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ۔ حکومت اتحاد اور پی ڈی ایم کے جماعتوں کے قائدین پیر کی صبح 10:30 بجے مشترکہ پریس کانفرنس میں اہم اعلان کریں گے۔ سپریم کورٹ بار کے 5 سابق صدور کا چیف جسٹس سے نظر ثانی درخواست فل کورٹ میں بھیجنے کا مطالبہ، کہا اہم ترین آئینی مقدمات کے تمام فریقین کو سن کر ایک ساتھ فیصلہ کیا جائے۔ ہمیں فل کورٹ چاہیے، سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کا 2 ٹوک اعلان، کہا وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب انتہائی اہمیت کا حامل ہے، ہماری جیت نے معاملے پر فریق بننے کا فیصلہ کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں عدالت کا وقار بحال رہے اور فیصلوں کو ہر شخص دل و جان سے قبول کرے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی زیر صدارت اجلاس، ڈپٹی اسپیکر کی غیر آئینی رولنگ اور عدلیہ مخالف مہم کا جائزہ لیا گیا، بابر اعوان کی کیس سے متعلق آئینی اور قانونی نکات پر بریفنگ۔ حمزہ اور شہباز اپنا سامان پیک کر لیں، اکتوبر نومبر میں ہر صورت الیکشن ہوں گے، قوم تیاری کر لے، شیخ رشید کا بڑا دعویٰ، بولے ملک کو معاشی بحران کی قیامت سے بچانے کے لیے بہت تھوڑا عرصہ رہ گیا ہے، مضبوط ریاست ہوگی تو سیاست بھی چلے گی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ملک میں 2 اصول لاگو نہیں ہو سکتے، پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے انتخاب کے معاملے کو سپریم کورٹ کا فل بینچ دیکھ لے گا تو یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ رہنما پیپلز پارٹی شاذ عمری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا سابق وزیر اعظم پی ٹی آئی چیئرمین عمران نیازی نے پے در پہ جھوٹ بولے، اب ملک میں لاڈلے پن کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے، ملک میں نفرتیں پھیلانے کا سلسلہ پہلی دفعہ شروع نہیں ہوا، عمران خان بھی اسی طرح کے فساد پیدا کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ سکتے ہیں تو موجودہ حکومت سے الگ ہونا مشکل نہیں، حکومتی اتحادی جماعت ایم نے حکومت سے علیحدگی کا عندیہ دے دیا۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں آج ہم نے سپریم کورٹ سمیت ملک کے تمام فورمز پر بتایا کہ سندھ کے ساتھ پھر زیادتی کی جا رہی ہے۔ نرم مداخلت کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، سیاسی جماعتوں کو الیکشن پر راضی کرنے کا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر جاوید لطیف کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو، بولے سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، پنجاب کے انتخاب کے کیس کی فل کورٹ میں سماعت کا مطالبہ۔ عدلیہ کے خلاف بیانات شروع، فوج کے خلاف جلد شروع ہو جائیں گے۔ عدلیہ پر تنقید کرنے والے فواد چودھری نے مسلم لیگ نون کی قیادت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، کہا 100 پیاز اور 100 چیتر کا محاورہ جیسا نون لیگ پر صادق آتا ہے اس کی مثال مشکل سے ملتی ہے، فوج اور عدلیہ کو سیاست میں گھسیٹنا بند کرو۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا فواد چودھری کو جواب، 100 انڈے اور 100 چیتر اب عمران صاحب کا مقدر ہیں، اداروں کو گالی اور دھمکی دینے والا اداروں کا ٹھیکیدار نہ بنے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیاض الحسن چوہان نے کہا بیگم صفدر آوان گالم گلوچ بریگیڈ میدان اول میں نکل آئی، سوشل میڈیا اور پریس کانفرنس کے ذریعے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، طلال چودھری جیسے بدنام زمانہ اداکار ججز کے خلاف بولنے کے لیے لانچ کر دیے گئے۔
सोशल मीडिया पर इदारों को गालियां देने के पीछे फवाद चौधरी हैं। मुस्लिम लीग नून इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने पर यकीन नहीं रखती। अता तारड़ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले फवाद चौधरी की जेर क़यादत PTI के ट्रेंड का सिलसिला आज भी जारी है। हो सकता है इमरान फॉरेन फंडिंग केस में फंदा टाइट होता देखकर मफावत की तजवीज़ दे रहे हों। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल ने अक्टूबर में आम इंतखाबात की तजवीज़ से लाइलमी का इजहार कर दिया। एहसन इकबाल ने कहा कि किसी भी कौमी मफावत में गैर मुल्की फंडिंग पर NRO शामिल नहीं हो सकता। जमात इस्लामी ने हुकूमत के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। सवात में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिराजुल हक ने कहा कि मुल्क में सिलेक्शन के बजाय साफ शफाफ इलेक्शन की जरूरत है, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि यहाँ ओहदे के लिए सेनेटर और मेंबरान असम्बली को खरीदा जाता है। तर्जुमान पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि तासुर आम हो चुका है कि लाडला अब भी लाडला है। किसी न किसी सूरत में कहीं न कहीं से लाडले को सहूलत दी जा रही है। लाडले को अदालत ने आइन शिकन और अमरीकी साजिशी बयानिया में झूठा साबित किया। मॉनसून की धुआंधार एंट्री, राजनपुर, लोरालाई, चित्राल सैलाब से तबाही। कराची समेत सिंध भर में तेज बारिश से निजाम दरहम बरम, बिजली गायब और सड़कें जेर आब आ गईं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तोयानी, मूसलाधार बारिश से दर्जनों घर मुनहदिम, शहरी घरों में महसूर। महकमे मौसमियात के मुताबिक स्पेल 28 जुलाई तक रहने का इम्कान है। मुल्क भर में जारी बारिशों से तबाही का खतरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम वफाकी और सूबाई हुकूमतों और इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी। मुश्किल सूरत हाल में सिंध हुकूमत की हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं हसन रऊफ। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुश आमदीद। आपको सबसे पहले बताएं कि डिप्टी स्पीकर की रोलिंग के खिलाफ दरख्वास्त, सुप्रीम कोर्ट में समाअत कल होगी। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी की रोलिंग के खिलाफ परवेज इलाही की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी स्पीकर की रोलिंग के खिलाफ केस की समाअत कल होगी। सुप्रीम कोर्ट और रेड जोन की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने का फैसला कर लिया गया। रेड जोन में एंटी राइट फोर्स तैनात की जाएगी। हफ्ता को लाहौर रजिस्ट्री ब्रांच के बाहर कारकुनों की बड़ी तादाद जमा हो गई थी, जिसके बाद सिक्योरिटी इदारों का अदालत उस्मा के बाहर फिर कारकुनों के जमा होने का इम्कान है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट और रेड जोन की सिक्योरिटी बढ़ा दी, जिसके बाद फैसला किया गया है कि पीर को किसी सूरत सियासी कारकुनों को सुप्रीम कोर्ट तक रसाई न दी जाए। रेड जोन में दाखिला ऑफिस कार्ड की बुनियाद पर ही दिया जाए। रेड जोन में कैदी वैन और वाटर कैनन भी रेड जोन में रखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब, हुकूमती इत्तेहाद का फुल कोर्ट के लिए पटिशन दायर करने का फैसला। हुकूमती इत्तेहाद और PDM जमातों के कायदीन पीर की सुबह 10:30 बजे मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम ऐलान करेंगे। PDM की हुकूमत जमातों और इत्तेहादी कायदीन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपने वकला के हमरा मुश्तरका तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब, सुप्रीम कोर्ट बार की नजरसानी दरख्वास्त और मुतलका दरख्वास्तों की एक साथ समाअत करने की इस्तदा की जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI फेज सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। MQM, ANP, BNP, बाप समेत दीगर इत्तेहादी जमातें भी दरख्वास्त गुजारों में शामिल हैं।
اب آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ بار کے سابق 5 صدور کا چیف جسٹس سے نظر ثانی درخواست فل کورٹ میں بھیجنے کا مطالبہ۔ سابق صدور سپریم کورٹ بار نے مزید کہا کہ اہم ترین آئینی مقدمات کے تمام فریقین کو سن کر ایک ساتھ فیصلہ کیا جائے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز حکمراں اتحاد نے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا تھا جس میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن کے معاملے کے حوالے سے دائر درخواست کو فل بینچ میں بھیج دیے۔ ہمیں فل کورٹ چاہیے، سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کا 2 ٹوک اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ہماری جماعت معاملے میں فریق بننے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عدالت کا وقار بحال رہے اور فیصلوں کو ہر شخص دل و جان سے قبول کرے۔ عمران خان کی پوری سیاسی زندگی ایک جھوٹے بیانے پر کھڑی ہے۔ بات ہو رہی ہے، کل بھی میں نے اس پر بات کی تھی کہ ریاست کمزور ہو رہی ہے، کسی بیرونی دشمن کے ہاتھوں نہیں، ہمارے اپنے اداروں کی سیاست میں مداخلت کی وجہ سے حکومتی نظام کو مسترب رکھا جا رہا ہے۔ حکومت کو حکومت کرنے دیں۔ حکومت نے ایک چیلنج کے طور پر اس نظام کو قبول کیا ہوا ہے۔ 4 سالہ غلاظتیں قوم کے اوپر ایک کوہ گراں بن کر جب یہ لوگ مسلط رہے، آج اس سے جب جان خلاصی ہوئی ہے تو ان ساری مشکلات سے نکلنا ایک چیلنج ہے۔ لیکن اگر مداخلت کے نتیجے میں حکومتی نظام مضطرب رہتا ہے، کنفیوژن رہتی ہے، تو ادارے بھی کام نہیں کریں گے، مالیاتی ادارے بھی کام نہیں کریں گے، انتظامی ادارے بھی کام نہیں کریں گے، اور عام آدمی بھی اپنے گھر میں پریشان اور سرگرداں رہے گا۔ تو اس اعتبار سے ریاست کمزور ہو جاتی ہے، اور اگر ریاست کمزور ہوتی ہے تو میرے خیال میں پھر اس حوالے سے میں ایک بات کہنا چاہوں گا بڑی وضاحت کے ساتھ کہ ہمارے اداروں میں یقیناً کچھ افراد ایسے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد پھر وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، پہلے انہوں نے کور لیا ہوتا ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ گورنر ہاؤس میں تقریب حلف برداری، وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی 41 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر پنجاب ملیک الرحمان نے صوبائی وزراء سے حلف لیا۔ حلف لینے والوں میں علی حیدر گیلانی، رانا رمیش، عمران نذیر، بلال یاسین شامل۔ رانا اقبال، مہر اعجاز اچلانہ، ملک ندیم کامران سمیت دیگر وزراء نے بھی حلف لیا۔ آپ کو بتائیں کہ گورنر ہاؤس میں تقریب حلف برداری، وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی 41 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر پنجاب ملیک الرحمان نے صوبائی وزراء سے حلف لیا۔ حلف لینے والوں میں علی حیدر گیلانی، رانا مشہود، عمران نذیر، بلال یاسین، رانا اقبال، مہر اعجاز اچلانہ، ملک ندیم کامران سمیت دیگر وزراء نے بھی حلف لیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ ملک میں 2 اصول لاگو نہیں ہو سکتے۔ پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے انتخاب کے معاملے کو سپریم کورٹ کا فل بینچ دیکھ لے گا تو یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ لاہور رجسٹری کی دیواریں پھلانگنے کے عمل کا سپریم کورٹ نے ایکشن نہیں لیا۔ مقدمے کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے فل کورٹ بنایا جانا چاہیے۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ یہ بات کرین انصاف ہوگی کہ عدالت کا فل کورٹ اس درخواست کو سنے۔ امید کرتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب ہماری درخواست پر غور فرمائیں گے۔ فل کورٹ کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ علی صاحب، جناب یاسین آزاد صاحب، جناب فضل حق عباسی صاحب، کامران مرتضیٰ صاحب اور سید کلب حسن صاحب نے بھی یہی مطالبہ دہرایا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سربراہ جناب احسن ہون صاحب، جن کی یہ ریویو اپلیکیشن ہے، اور پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین حفیظ الرحمان چودھری صاحب نے بھی بیان جاری کیا ہے اپنے اداروں کی طرف سے کہ یہ معاملہ اس طرح کا نازک اور سنجیدہ معاملہ ہے
اور یہ کانسٹیٹیوشنل کویسچن اس طرح کا ہے کہ اس میں 2015-2018 میں جو فیصلے دیے گئے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے، جن میں ایک دفعہ 8 رکنی بینچ نے تشریح کی تھی آرٹیکل 63A کی، لگتا ہے کہ اس فیصلے میں اس کو بھی کسی حد تک نظر انداز کیا گیا ہے. تو کیونکہ 8 رکنی 5 رکنی بینچ پہلے بھی اس پہ بیٹھ چکے ہیں، تو کیا ہی بہتر ہو اور یہ قرین انصاف ہوگا کہ اگر اس پہ فل کورٹ بیٹھے اور فیصلہ کرے. پھر جو درخواست اس وقت چل رہی ہے اس میں جو فریقین ہیں، اس میں منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز صاحب کے وکلاء بھی اب یہ بات کرتے، اور کل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے بھی یہی بات کی تھی اور وہ عدالت کے سامنے بھی رکھنے جا رہے ہیں کہ یہ ضرور دیکھا جائے کہ مقدمے کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے فل کورٹ بٹھائی جائے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کیوں فل کورٹ بٹھائی جائے. میں یہ سمجھتا ہوں بطور وکیل اور بطور پاکستانی شہری کے اور ایک جمہوریت پسند ووٹر کے، کہ ماضی میں جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک جج صاحب کے بارے میں ریفرنس فائل ہوا اور پھر وہ معاملہ چیلنج ہوا کہ کیوں نہ آرٹیکل 209 کے تحت انہیں برخاست کیا جائے، تو اس پہ بھی فل کورٹ بنا اور فل کورٹ نے اس پہ فیصلہ دیا. پھر نظر ثانی کی درخواست بھی فل کورٹ نے سنی. 12 کروڑ عوام کے منتخب نمائندے کو اگر عدالتی فیصلے کے ذریعے سے گھر بھیجنا ہے تو میں یہ ضرور سمجھوں گا کہ جو ٹرانسپیرنسی اور انڈیپینڈنس کا یہ تقاضا ہے کہ عدالت اس درخواست کو سنجیدگی کے ساتھ سنے، اور یہ قرین انصاف ہوگا کہ اگر اس کو تمام جو عدالت کے جج صاحبان ہیں فل کورٹ کے سامنے رکھا جائے، کیونکہ جو آرٹیکل 63A کی تشریح ہے اس کے بابت بہت سے وکلاء اور سول سوسائٹی کے نمائندے سوشل میڈیا پر اداروں کو گالیاں دینے کے پیچھے فواد چودھری ہیں. عطاءاللہ تالڑ کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ کاف کی پارلیمانی پارٹی کے سربراہ کے بارے میں پہلے کبھی نہیں سنا. کاف لیگ کی پارلیمانی پارٹی کے کون سے اجلاس میں فیصلہ ہوا، یہ ایک اہم آئینی اور قانونی نوعیت کا معاملہ ہے. اس معاملے پر فل کورٹ بٹھانے میں کوئی حرج نہیں. چودھری شجاعت حسین نے کاف لیگ کے ارکان کو واضح ہدایت کی تھی کہ حمزہ شہباز کو ووٹ دیا جائے. اداروں کے خلاف ٹرینڈ چلایا کرتا تھا اور وہاں سے توہین آمیز ٹرینڈز بھی چلائے جاتے تھے، سوشل میڈیا پر کیمپینز بھی لانچ کی جاتی تھی. تو یہ ان کا کام ہے، آج بھی چل رہا ہے. آج بھی اداروں کے سربراہان کا نام لے کر سوشل میڈیا پہ گالیاں دی جاتی ہیں اور پیچھے فواد چودھری صاحب موجود ہیں. ہمارا کبھی بھی نہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نہ وفاقی وزیر اطلاعات کبھی ایسی کوئی نہ کیمپین لانچ کی گئی ہے. یہ اب جس طریقے سے الزامات لگائے جا رہے ہیں اس کو مسترد بھی کرتے ہیں. اور میں فواد چودھری صاحب کو کہنا چاہوں گا کہ آپ جو ٹرینڈز چلوا رہے ہیں اور آپ کو جہاں سے فنڈنگ آ رہی ہے اور جو روز آپ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، چند ہفتے پہلے ہی جو آپ نے پریس کانفرنسز کی وہ عوام کے سامنے ہیں. ایک آپ میں ضرور خاصیت ہے اس وجہ سے آپ ہر وقت پارٹیاں بھی تبدیل کرتے ہیں. آپ سے بہتر خوش آمدی میں نے نہیں دیکھا. یہ آپ کی بہت بڑی خاصیت ہے، خصوصیت ہے. خامی بھی ہے کہ زندگی میں کبھی آپ نے سچ نہیں بولا، یہ آپ کی خامی ہے. تو یہ اب آپ نے کل کو دوبارہ جب پارٹی تبدیل کرنی ہے تو جن حلقہ آباد سے آج جن لوگوں کو نواز میں کل ان کی تعریفیں بھی کریں گے. میں دوبارہ کہوں گا کیونکہ جو پولیٹیکل پارٹی کا صدرہ ہوتا ہے باپ کی جگہ ہوتا ہے. ڈبو کبھی ایک ہی ابو، اس کو ملوز خاطر رکھا کریں. جہاں تک بات ہے فل کورٹ کی، اس پہ بڑی تفصیل سے بات ہوئی. دیکھیے یہ پچھلا جو فیصلہ آیا تھا جس کے تحت ہمارے 25 ووٹ مائنس کیے گئے، وہ 5 آنریبل ججز پر مشتمل بینچ نے کیے تھے. اب اگر یہی 63A کی تشریح ہے تو فل کورٹ جو ہے وہ انصاف کے تقاضے پورے کر سکے گا. اور جس طرح اعظم نذیر طارق صاحب نے بھی فرمایا، یہ روایات بھی یہی ہیں کہ جب ایسے اہم قانونی اور آئینی معاملات ہوں تو اس پر فل کورٹ بٹھایا جاتا ہے. اب کل کا جو آرڈر آیا وہ کل عدالت میں بھی بات ہوگی، مگر ابھی تک چودھری شجاعت صاحب کا لیٹر عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، اس کو ایگزامن نہیں کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو پارلیمانی پارٹی کی پی ٹی آئی کی ہدایت تھی، پی ٹی آئی کا لیٹر موجود ہے اسد عمر صاحب کا، آن ریکارڈ ہے. اس میں لکھا ہے کہ عمران خان صاحب کی ہدایت ہے
کہ परवेज राय साहब को वोट डाला जाए, उस लेटर की बुनियाद पे हमारे 25 लोगों के वोट काउंट नहीं किए गए। वहां पे कहां गई पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग और कहां गया पार्लिमानी लीडर? और देखिए, काफ लीग के पार्लिमानी लीडर का नाम भी किसी को नहीं पता। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि हमजा और शहबाज अपना सामान पैक कर लें। अक्टूबर नवंबर में हर सूरत इलेक्शन होंगे, कौम तैयारी कर ले। शेख रशीद का बड़ा दावा, बोले मुल्क को मुआशी बहरान की क़यामत से बचाने के लिए बहुत थोड़ा अरसा रह गया है। सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ लेकर जा रहा है। नून लीग अदलिया के खिलाफ एजेंडे पर निकली है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद का कहना है कि अगस्त से पहले हमें अहम फैसले करने होंगे, वरना शायद कोई भी हुकूमत ना चला सके। मजबूत रियासत होगी तो सियासत भी चलेगी। आज हमारे पास खाम माल की इंपोर्ट के लिए डॉलर्स दस्तियाब नहीं हैं। शेख रशीद ने सवाल किया कि अहम कानूनी मामले को छोड़कर अटॉर्नी जनरल मुल्क से बाहर क्यों चले गए। पंजाब चला गया तो वजीर आजम CDA का चेयरमैन रह जाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क को मुआशी बहरान की क़यामत से बचाने के लिए बहुत थोड़ा अरसा रह गया है। आज खाम माल की इंपोर्ट के लिए डॉलर दस्तियाब नहीं है। सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ लेकर जा रहा है। पंजाब उनके हाथ से निकल चुका है। रहनुमा PTI फरूख हबीब कहते हैं, ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने नून लीग समेत दीगर तमाम को मुस्तरद कर दिया। ये मुस्तरद शुदा टोला अपनी करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है, इनसे कोई इदारा महफूज नहीं। जो है वो कानून और आइन की हाकमियत की इनकी आगे बात ना करें, और ये तमाम इदारों को जो है अपना कुछ समझे ही ना। आपको याद होगा कि पनामा केस के दौरान जिस तरीके से इन्हीं के पार्टी के अरकान, चाहे वो निहाल हाशमी हो, दानियाल अजीज हो, उस वक्त तलाल चौधरी हो, सबसे मरियम सफदर ने क्या क्या बयानात नहीं दिलवाए थे जजेस के बारे में, उनके खानदान के बारे में, और बाद में उनको सजाएं भी जो है वो भुगतनी पड़ी थी। अब फिर से वो एक ट्रेंड जो है वो नजर आ रहा है, और उस ट्रेंड को अगर आप मद्देनजर रखें तो आप ये इनका माजी का बैकग्राउंड किसी सूरत नहीं भूल सकते कि ये हमेशा इसी तरह कोशिश करते हैं कि दबाव क्रिएट करें, दबाव क्रिएट करके अपनी मर्जी के फैसले लें। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोई भी साहब इल्म मारूफ कानूनदान जो है, जो डिप्टी स्पीकर एक चाबी वाला खिलौने का उसने किरदार अदा किया, जितनी चाबी दे दी उतना उसने सबक पढ़ के आगे सुना दिया कि उसने आर्टिकल 63A(1)(b) की तशरीह भी खुद से गलत कर दी, और जो सुप्रीम कोर्ट का 17 मई का शॉर्ट ऑर्डर है उसकी भी खुद से तशरीह गलत कर दी। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि 179 वाला जो है वो आगे आ जाए और 186 वाले को आप घर भेज दें। कोई कानूनदान डिप्टी स्पीकर की उस गैर आईनी गैर कानूनी रूलिंग के दफा करने को तैयार नहीं है। इवन अब इनके अपने वकील जो केसेस में दफा में पेश हो रहे थे वो उसका दफा करने को तैयार नहीं है। तो थोड़ा सा आईना देखें। और आप किस मुंह से अदलिया के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च की हुई है, जिस तरह चौधरी साहब ने। साबिक वफाकी वजीर व रहनुमा PTI हमाद अजहर कहते हैं, अवाम ने सियासी निज़ाम में मुदाखलत करके साजिश को नाकाम बना दिया। चोर दरवाजे से इक़्तिदार पर काबिज होने वालों को अवाम ने उठाकर बाहर फेंक दिया है। PDM ने पहले मुल्क की खुददारी बेची, फिर मईशत तबाह की। मजीद कहा कि ये अवाम को दबाने के लिए जुल्म और बर्बरियत पर उतर आए, अब मजलूमियत का चूरन बेचते फिर रहे हैं। के एक अमूर के ऊपर और वज़ीर आज़म इमरान खान की आज़ाद खारिजा पॉलिसी की वजह से एक ऐसे शख्स को वज़ीर आज़म बनाया गया और एक ऐसी जमात को जिसके पास 342 के हाउस में सिर्फ 85 नशिस्तें थीं, उनको वज़ीर आज़म एक साजिश के ज़रिए वज़ीर आज़म के मनसब पर फाइज कर दिया गया। और इसी तरह पंजाब में 3 माह से एक ऐसा शख्स वज़ीर आला है जिसके पास पंजाब असम्बली में अक्सरियत हासिल नहीं हुई। और जो सिंध हाउस के अंदर ये सारा कुछ करने के लिए हुआ वो सब आपने देखा। जो
ان لوگوں کو مسلط کرنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ ہوا، ہمارے کارکن شہید کیے گئے، دہشت گردی کے پرچے ہمارے قائدین پہ کیے گئے، خواتین پہ، پورے ملک کی خواتین، صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں، عوام پہ، بچوں پہ ٹیئر گیس کے شیل برسائے گئے. وہ یہ جو دو اشخاص تھے، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ، باپ اور بیٹا، جن کے پاس نہ تو وفاق کے ایوان میں اکثریت تھی، اور جو چھوٹا تھا اس کے پاس صوبے کے ایوان میں بھی آج تک اکثریت نہیں ہے، لیکن عوام کا مینڈیٹ چرا کے آج بھی وہ مسلط ہیں ان دونوں ایوان پہ. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ چند اور دن کی بات ہے، کل یا پرسوں میں یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اس سارے کے بعد الیکشن کمیشن خاموش رہا. پاکستان تحریک انصاف پہ ظلم اور بربریت اور اس پوری قوم کی معیشت کے ساتھ جو کیا گیا وہ اسی طرح چلتا رہا، اور ہم یہ سب کچھ سہتے رہے. پھر عوام نے، آپ سمجھ لیجئے کہ مداخلت کر دی اس سارے نظام کے اندر، اور عوامی مداخلت کے نتیجے میں یہ سازش اب ناکام ہو گئی ہے. اور ضمیر کے سوداگر، آپ نے دیکھا کہ پرسوں چوتھ ضمیر کے سوداگر جو ہیں وہ آ کے ڈیرے ڈال کے یہاں بیٹھ گئے، کبھی کسی کے گھر جا کے کسی کے گوڈے پکڑیں، کبھی کسی کے گھر چلے جائیں. لیکن ان کی تمام تر کوششیں ناکام ہو گئیں، کیونکہ ہر شخص کو پتہ ہے کہ اس وقت عوام کا رد عمل کیا ہے، اور کوئی جرت نہیں کر سکتا اس وقت عوام کے سامنے کھڑے ہونے کی، چاہے وہ ایم پی اے ہو یا ایم این اے ہو. اور جو ایم پی ایز اور ایم این ایز کھڑے ہوئے تھے عوام کے سامنے، نرم مداخلت کی آوازیں اٹھ رہی ہیں. سیاسی جماعتوں کو الیکشن پر راضی کرنے کا ماحول بنایا جا رہا ہے. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما و وفاقی وزیر جاوید لطیف نے کہا کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. رات کے وقت سپریم کورٹ کی دیواریں پھلانگی گئیں، اسے جذبات کا اظہار قرار دیا جاتا ہے تو نون لیگ پر سپریم کورٹ کے حملے کے الزام کی معافی مانگی جائے. پالیسی ساز اداروں کو سوچنا ہوگا، پہلے اپنی کی ہوئی غلطی تسلیم کریں. اس کو اسائنمنٹ دیے ہوئے ہیں اور یہ صبح شام روز نئی بات کرتا ہے، روز نئے جھوٹ بولتا ہے، مگر کوئی اس کو پوچھنے والا اس لیے نہیں ہے کہ جب یہ کہتا ہے کہ جناب جنرل اور ججز کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں، تو آج قوم سوال کرتی ہے کہ ان 4 ماہ میں جو تم بار بار کہہ رہے ہو فیصلے کرتے ہیں بند کمروں میں، کوئی ایک فیصلہ ایسا آیا ہے جو آئین قانون سے ہٹ کر تمہارے خلاف ہو، اس کو کوٹ کرو. میں تو یہ کہتا ہوں کہ کوئی فیصلہ آیا ہی نہیں اس کے متعلق. اس کے باوجود پرزوم کر کے صرف اندر کا خوف کہ آنے والے وقتوں میں یہ ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ باتیں وہ کر رہا ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے. مگر ہم پچھلی تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، جیلوں کو بلا کر ہم آگے پاکستان کے لیے بڑھنا چاہتے ہیں، بڑھ رہے تھے. مگر جو بیریئر کھڑے کیے جا رہے ہیں راستے میں، ان کے ہوتے ہوئے جس مقصد کے لیے، بڑے مقصد کے لیے ہم نے قربانی دی تھی، وہ تھا پاکستان کا مالیاتی اداروں سے جو ڈیل ہونا تھی وہ ملکی مفاد میں ہو سکے تاکہ ملک دیوالیہ نہ ہو. اس کے راستے میں رکاوٹیں اتنی کھڑی کر دی گئی ہیں کہ آج وہ بھی فلفل کرنا ممکن نہیں نظر آ رہا. تو میں بڑے دکھی دل سے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ آج جو نظریہ نواز شریف کے محافظ ہیں اور جو سمجھتے ہیں 22 کروڑ عوام میں سے اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ نظریہ نواز شریف پاکستان کے بقا کی ضامن ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اپنے حق کے لیے اداروں کے باہر دھرنے دینا، جتھے لے کر جانا، اپنے حق کے لیے بھی جو کسی کا حق نہیں تو اس کو دیا جا رہا ہے، اگر ہمیں اپنے حق کے لیے پھر اس طرح نکلنا ہے تو لوگوں نے آواز دے دی ہے، لوگ نکلنا شروع ہو چکے ہیں. میں گزارش کروں گا آج بھی کہ اگر جمہور کی آواز نہ سنی گئی اور یہ احتجاج
रहनुमा पीपल्स पार्टी शाहजहां मरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, साबिक वजीर आजम PTI चेयरमैन इमरान न्यासी ने पे दर पे झूठ बोले हैं। अब मुल्क में लाडलेपन का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। मुल्क में नफरतें फैलाने का सिलसिला पहली दफ़ा शुरू नहीं हुआ। इमरान खान भी इसी तरह के फसाद पैदा कर रहे हैं। शाहजहां मरी का कहना था कि इमरान खान की पूरी ज़िंदगी झूठ पर मबनी है। फितना खान लोगों को लड़वा रहे हैं। PTI के लिए अलग कानून और मुस्लिम लीग काफ के लिए अलग कानून है। PTI के 20 अरकान को D सीट भी तो इसी कानून के तहत दिया गया था। वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि आरिफ अलवी को सदर ममलिकत की हैसियत से काम करना चाहिए। कासिम सूरी को उनकी रोलिंग पर समन नहीं किया गया। दोस्त मजारी को इनकी रोलिंग पर समन किया गया। उनका यह भी कहना है कि एक और शख्स था जो लंदन में बैठ कर ऐसा करता था। आज उसकी तकरीर पर पाबंदी है। इसका सब कुछ ख़त्म हो गया। इमरान खान भी उसी तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ सकते हैं तो मौजूदा हुकूमत से अलहदगी मुश्किल नहीं है। हुकूमती इत्तेहादी जमात MQM ने हुकूमत से अलहदगी का इंदिया दे दिया। कन्वीनियर MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि मुल्क इस वक्त शदीद मुआशी मुश्किलात का शिकार है, जिसे बाहमी फैसलों से मिलकर ठीक करने की ज़रूरत है। जनरल वर्कर्स इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हमें इस सवाल का जवाब दिया जाए कि अंदरून सिंध और कराची में जहाँ पीपल्स पार्टी की UC थी, वहाँ 20,000 अफराद की UC बना दी गई और हमारी UC 90,000 अफराद पर बनाई गई। ये कहाँ का इंसाफ है? 90,000 में तो 3 UCs बन सकती हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का मजीद कहना था कि आज हमने सुप्रीम कोर्ट की रिट समेत मुल्क के तमाम फोरम्स पर बता दिया है कि सिंध के साथ फिर ज्यादती की जा रही है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुकूमत MQM के मुतालबात जाली मरदमशुमारी के 4 साल बाद भी नई मरदमशुमारी करने पर राजी हो गई है। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में एक बार फिर खुश आमदीद। जब कौमें अपना नजरिया और मकसद खो देती हैं तो वो जवाल पजीर हो जाती हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर इमरान खान ने गालिब का शेर शेयर करते हुए लिखा कि उनका ये शेर उस वक्त का था जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम बनने वाले थे। उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत के इक़दामात देखकर मिर्ज़ा गालिब का शेर आज सच साबित हो रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास। डिप्टी स्पीकर की गैर आइनी रोलिंग और अदलिया मुखालिफ मुहिम का जायजा लिया गया। बाबर अवान की केस से मुतालिक आइनी और कानूनी निकात पर ब्रीफिंग। इमरान खान ने कहा कि पंजाब के अवाम का फैसला देखकर ऊंचे हथ गंडों पर उतर आए। अदलिया के खिलाफ बयानात शुरू। फौज के खिलाफ भी जल्द शुरू हो जाएंगे। फवाद चौधरी की नून लीग पर तनकीद। अदलिया पर तनकीद करने पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। PTI रहनुमा ने सोशल मीडिया पर कहा कि 100 प्याज और 100 छितर का मुहावरा जैसा नून लीग पर सादिक आता है, इसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। नून लीग ने इस्टेब्लिशमेंट की गोख से जन्म लिया। आपस में तय किया, एक प्रो इस्टेब्लिशमेंट सियासत करेगा और दूसरा एंटी इस्टेब्लिशमेंट मंजन बेचेगा। फवाद चौधरी ने कहा कि यही फार्मूला अगली नस्ल में भी ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अब नून लीग को लगा कि इमरान खान के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट से नती होकर बड़ी गलती हो गई। मरियम नवाज अब एंटी इस्टेब्लिशमेंट चूरन बेचेंगी। इस स्कीम में खामी यह है कि 1990 वाले लोग अब नहीं और मुकाबला भी इमरान खान से है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने PTI रहनुमा फवाद चौधरी के बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा कि फौज और अदलिया को सियासत में घसीटना बंद करो। 100 गंडे और 100 छितर अब इमरान साहब का मुकद्दर है। इदारों को गाली और धमकी देने वाला इदारों का ठेकेदार न बने। इक़्तिदार में वापसी के लिए इन्हें इस्टेब्लिशमेंट या एंटी इस्टेब्लिशमेंट का खेल नहीं खेलने देंगे। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि किसी को भी आइन और कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। इमरान खान ने एतराफ़ किया कि 4 साल हुकूमत चलाने के लिए इदारों और एजेंसियों की मदद ली। हम किसी को भी धौंस, धमकी और गाली से इंसाफ का कत्ल नहीं करने देंगे। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का बयानिया
آئین کا بیانیہ ہے اور رہے گا۔ عمران خان کا نشانہ ادارے ہیں، ان کی قیادت کو عہدوں سے اتروانا، منہ پر خون لگنے کی بات کر کے اب پاؤں نہ پکڑیں۔ نون لیگ اور شین لیگ کی موجودہ صورتحال 100 پیاز اور 100 چھتر کھانے کے مترادف ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ بیگم صفدر آوان کی گالم گلوچ بریگیڈ میدان عمل میں نکل آئی ہے۔ سوشل میڈیا اور پریس کانفرنس کے ذریعے دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ طلال چودھری جیسے بدنام زمانہ کردار ججز کے خلاف بولنے کے لیے لانچ کر دیے گئے ہیں۔ فیاض الحسن چوہان نے مزید کہا کہ اب تو نون لیگ بھی فوری الیکشن کا مطالبہ کرنے کی دھمکیاں دینے لگ گئی ہے۔ جماعت اسلامی نے حکومت کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ سوات میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سراج الحق کا کہنا تھا کہ 9 سالوں میں خیبر پختونخوا میں کچھ نہیں بدلا۔ خیبر پختونخوا بدامنی اور ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہے۔ عوام کو کسی قسم کا تحفظ حاصل نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں سلیکشن کے بجائے صاف شفاف الیکشن کی ضرورت ہے، لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ یہاں پر عہدے کے لیے سینیٹرز اور ممبران اسمبلی کو خریدا جاتا ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی عوام کے لیے نہیں، آج سے میرا موجودہ حکومت کے خلاف اعلان جنگ ہے، کیونکہ موجودہ حکمرانوں کی وجہ سے غریب تباہ ہو رہا ہے۔ حکمرانوں کو قومی مسائل اور غریبوں کا کوئی احساس نہیں۔ پاکستان ڈیموکریٹک پی ڈی ایم کے ترجمان حافظ حمداللہ نے کہا کہ تاثر عام ہو چکا ہے کہ لاڈلا اب بھی لاڈلا ہے۔ اسلام آباد نے جاری بیان میں کہا کہ کسی نہ کسی صورت میں کہیں نہ کہیں سے لاڈلے کو سہولت دی جا رہی ہے۔ پی ڈی ایم ترجمان نے یہ بھی کہا کہ لاڈلے کو عدالت نے آئین شکن اور امریکی سازشی بیانیہ میں جھوٹا ثابت کیا۔ بدقسمتی سے کچھ کرداروں کی جانب سے حوصلہ افزائی اب بھی ہو رہی ہے۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے اب بات کریں کچھ موسم کی۔ مونسون کی دھواں دھار انٹری، راجن پور، لوراڈائی، چترال سیلاب سے تباہی۔ بارش برسانے والا مانسون سسٹم سندھ پر بھی اثر انداز ہو گیا۔ تیز بارش سے نظام درہم برہم ہو گیا، بجلی غائب، سڑکیں زیر آب آ گئیں۔ اپر چترال میں موسلادھار بارش سے 7 گھروں کو مکمل جبکہ متعدد گھروں کو جزوی نقصان پہنچا۔ درجن سے زیادہ مال مویشی بھی ملبے تلے دب گئے۔ کراچی، لاہور، پشاور، آزاد کشمیر، حیدرآباد، کوئٹہ، ڈی جی خان، سوات اور ملک بھر میں موسلادھار بارش جاری۔ معمولات زندگی متاثر، شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ مختلف علاقوں میں طغیانی۔ رولالائی میں مقامی شخص نے سیلابی ریلے میں پھنسے 4 افراد کی جانیں بچا لیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مانسون بارشوں کا سلسلہ 28 جولائی تک برقرار رہنے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک بھر میں بارشوں کے پیش نظر تمام وفاقی اور صوبائی حکومتوں اور اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ صوبائی حکومتوں اور اداروں کی بھرپور معاونت کرے، نشیبی علاقوں کی عوام کی جان اور مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ مشکل صورتحال میں وفاق سندھ حکومت کو ہر ممکن مدد فراہم کرے گا۔ منتخب نمائندے متعلقہ اداروں کے ریسکیو اور ریلیف کے کاموں کی مؤثر نگرانی کریں۔ پاکستان کا سری لنکا سے موازنہ اور معیشت پر منفی تجزیے درست نہیں۔ گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر مرتضیٰ سید نے سوشل میڈیا پر پھیلائے جانے والی خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگلے 12 مہینے عالمی معیشت کے لیے بہت اہم ہیں، لیکن پاکستان کے پاس IMF کا کور موجود ہے، اس لیے پاکستانی معیشت اس وقت اتنی کمزور نہیں جتنا لوگ سمجھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر مرتضیٰ سید نے کہا کہ کرونا سے متاثرہ بیشتر ممالک کے مقابلے میں ہمارے اشاریے بہت بہتر ہیں۔ ہماری ترقی کرونا سے متاثرہ معیشت میں سب سے بہترین تھی۔ گزشتہ سال ہماری ترقی کی شرح 6% رہی اور کوشش ہے کہ اس سال ترقی کی شرح مزید بہتر ہو۔ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر عنایت حسین نے بتایا کہ پاکستان کے غیر ملکی ذخائر $9.3 بلین ہیں، جسے ہم بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان کے ذخائر اس وقت وہ سطح نہیں ہے کہ ہم پریشان ہوں، اور سوشل میڈیا پر جو بے بنیاد خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ پاکستان کی معیشت کے لیے تو ڈیمونسٹریٹلی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پاکستان کے ذخائر کی صورت میں حال بہتر ہے، جس کے ذریعے ہم کچھ ماہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کی خصوصی کوششوں سے سال 2020 تک
लाहौर डिवीजन के 167 मुलाजमीन को ग्रेजुटी और उनकी अदायगी कर दी गई। तकरीबन 13 करोड़ रुपए की रकम रेलवे मुलाजमीन को अदा कर दी गई है। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक की खुसूसी कोशिशों से साल 2020 तक लाहौर डिवीजन के 167 मुलाजमीन को ग्रेजुटी और उनकी अदायगी कर दी गई। तकरीबन 13 करोड़ रुपए की रकम रेलवे मुलाजमीन में अदा कर दी गई। चीनी सदर ने मकामी सतह पर तैयार करदा कोविड वैक्सीन लगवा ली। चीन में आला सियासी शख्सियात की सेहत के हवाले से खबरें उमूमन आवाम और मीडिया से पोशीदा रखी जाती हैं। तहम बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी हुकाम की जानब से इस खबर को अवामी सतह पर जारी करने का मकसद मुल्क में कोरोना केसेस की शरह में इजाफे के बायस बूस्टर डोज की मुहिम को फ़रोग देना है। चीन के नेशनल हेल्थ एंड कमीशन के नायब सरबराह जिंग यक्सन का कहना है कि आला हुकाम को कोरोना की वैक्सीन लगने का मतलब है कि चीन की आला क़यादत मकामी सतह पर तैयार की गई वैक्सीन से मुतमईन है। याद रहे कि चीन ने कोरोना के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना रखी है। मुल्क में बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्टिंग और आइसोलेशन पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाता है, जबकि ज़्यादा कोरोना केसेस वाले इलाकों में लॉकडाउन भी नाफिज कर दिया जाता है। यमन में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। तूफानी बारिशों और सैलाब से 10 अफराद जाँ बहक। दारुल हुकूमत सेना से मिलने वाली इतलात के मुताबिक यमनी हुकाम ने बताया है कि तूफानी बारिशों और इसके बायस पैदा शुदा सैलाबी सूरत हाल से मुख्तलिफ हादसात में 4 बच्चों समेत 10 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। यमनी हुकाम का मजीद कहना है कि जाँ बहक होने वाले 4 बच्चे 3 मंजिला इमारत से गिरने से मौत का शिकार हुए। हुकाम के मुताबिक सैलाबी रेले में गाड़ी बहने से दीगर 6 अफराद भी जाँ बहक हुए। श्रीलंका ने पहली इनिंग्स में 6 विकेट के नुकसान पर 315 रन बना लिए। गॉल स्टेडियम में जारी मैच में मेजबान टीम की कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। श्रीलंका की जानिब से चंद जमल 80 और शार्डा फ्रेंडो 50 रन की नुमाया इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद नवाज तो, नसीम शाह, नौमान अली और यासिर शाह ने एक एक विकेट हासिल की। याद रहे कि दूसरे टेस्ट मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बरतरी हासिल है। कोहिनूर न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़। चले साल हा साल। कारकर्दगी बेमिसाल। अस्सलामुअलैकुम। एरिया टाउन कराची में अब अपना घर बनाना हुआ बेहद आसान। गुज़िश्ता 20 साल से आपकी पेशे खिदमत फ्रेंड्स एसोसिएट्स लाया आपके लिए आसान एक साथ पर अपना घर बनाने का सुनहरी मौका। सिर्फ 7,86,000 से अपना घर बुक करवाएं और 45,000 माहाना से बकिया रकम की अदायगी करें, वो भी 3.5 साल की आसान एक साथ पर। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 0337 सिर्फ रॉयल एसी फैंस में है टर्बो स्पीड और डीलर की जरूरत नहीं। ऑनलाइन मैगी मोटर से 50% बचे। बदले हवा के रंग रॉयल फैंस के संग। रॉयल साथ जिंदगी भर। लासानी का जोशाना प्लस मलाटी कदीम नुस्खा जदीद तहकीक गर्मी सर्दी में यकसा मुअस्सर। लासानी का जोशाना प्लस मलाटी कैनन होम अप्लायंसेस जो बनाए आपके कुकिंग एक्सपीरियंस को और भी खास, क्योंकि कैनन होम अप्लायंसेस मिलकर बनाए हम सबका ड्रीम किचन। कैनन होम अप्लायंसेस चले साल हर साल, कारकर्दगी बेमिसाल। लाइफस्टाइल अपडेट किया तो फैंस क्यों नहीं? रॉयल स्मार्ट लाइफस्टाइल। ACDC मोटर फैंस।
परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। बड़ी स्मार्ट। Such amazing features, जैसे ये 7-speed remote control। बिल्कुल noiseless। सिर्फ रॉयल एसी फैंस में है टर्बो स्पीड और डिलर की जरूरत नहीं। स्मार्ट चॉइस माय क्वीन। बदले हवा के रंग रॉयल फैंस के संग। रॉयल साथ जिंदगी भर का। लासानी का डाइमैक्सो गैस बदहजमी और निजाम हजम की इस्लाह के लिए ऑरेंज टेस्ट के साथ लासानी का डाइमैक्सो। तमाम दवाएं बच्चों से दूर रखें। खुराक लेवल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। अहमद अल सुवैबा ट्रैवल एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड। उम्रा की अदायगी और पाकिस्तान से करबला, नजफ और बगदाद शरीफ के मुकद्दस मकामात की ज़ियारत के पैकेजेस, हरम शरीफ और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तरीन रहाइश, इकोनॉमी पैकेज और 2 स्टार से 5 स्टार पैकेज। इसके अलावा आपकी मर्जी के मुताबिक भी पैकेज बनाया जा सकता है। अहमद अल सुवैबा ट्रैवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड। एड्रेस 2A अकबर रोड, काचूपुरा, लाहौर। अस्सलामुअलैकुम। बहरिया टाउन कराची में अब अपना घर बनाना हुआ बेहद आसान। गुज़िश्ता 20 साल से आपकी पेशे खिदमत फ्रेंड्स एसोसिएट्स लाया आपके लिए आसान इकसात पर अपना घर बनाने का सुनहरी मौका। सिर्फ 7,86,000 से अपना घर बुक करवाएं और 45,000 माहाना से बकिया रकम की अदायगी करें, वो भी 3.5 साल की आसान इकसात पर। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 0337 3 901। कैनन वाटर डिस्पेंसर दे ठंडक का एहसास, बुझाए आपकी प्यास। दिलकश डिजाइन, बड़े वाटर टैंक और कूलिंग कैबिनेट के साथ कैनन होम अप्लायंसेज चले साल हा साल, कारकर्दगी बेमिसाल। कोहिनूर फैशन हब, स्टाइल अप योर लाइफ, जहां आपको मिलेंगे पाकिस्तान के तमाम लेडीज और जेंट्स ब्रांड्स एक ही छत के नीचे। टेलीफोन नंबर 92-325-786-4400। हमारे जितने भी गेस्ट यहाँ पर आने वाले हैं उनके साथ हम करने वाले हैं बहुत अमेजिंग किस्म का मजा। देखिए प्रोग्राम चिट चैट विद मुस्तफा शाह इतवार की रात 10 बजे सिर्फ कोहिनूर टीवी पर। आप तमाम देखने वालों की, सुनने वालों की रहनुमाई और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में डिप्टी स्पीकर की रोलिंग के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में कल समाअत होगी। परवेज इलाही की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। वजीर आला पंजाब का इंतखाब, हुकूमती इत्तेहाद का फुल कोर्ट के लिए पटिशन दायर करने का फैसला। हुकूमती इत्तेहाद और पीडीएम के जमातों के कायदीन पीर की सुबह 10:30 बजे मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम ऐलान करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार के 5 साबिक सदूर का चीफ जस्टिस से नजरसानी दरख्वास्त फुल कोर्ट में भेजने का मुतालबा। कहा अहम तरीन आईनी मुकदमात के तमाम फरीकैन को सुनकर एक साथ फैसला किया जाए। हमें फुल कोर्ट चाहिए, सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान का 2 टोक ऐलान। कहा वजीर आला पंजाब का इंतखाब इंतहाई अहमियत का हामिल है। हमारी जीत ने मामले पर फरीक बनने का फैसला किया है। हम समझते हैं अदालत का वकार बहाल रहे और फैसलों को हर शख्स दिलो जान से कबूल करे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जेर सदारत इजलास, डिप्टी स्पीकर की गैर आईनी रोलिंग और अदलिया मुखालिफ मुहिम का जायजा लिया गया। बाबर अवान की केस से मुतालिक आईनी और कानूनी निकात पर ब्रीफिंग। हमजा और शहबाज अपना सामान पैक कर लें, अक्टूबर नवंबर में हर सूरत इलेक्शन होंगे।
कौम तैयारी कर ले। शेख रशीद का बड़ा दावा, बोले मुल्क को माशी बहरान की कयामत से बचाने के लिए बहुत थोड़ा अरसा रह गया है। मजबूत रियासत होगी तो सियासत भी चलेगी। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारट ने कहा, मुल्क में दो असूल लागू नहीं हो सकते। पंजाब में वजारत आला के इंतखाब के मामले को सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच देख लेगा तो ये मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, साबिक वजीर आजम PTI चेयरमैन इमरान नियाजी ने पैर दर पे झूठ बोले। अब मुल्क में लाडलेपन का सिलसिला खत्म होना चाहिए। मुल्क में नफरतें फैलाने का सिलसिला पहली दफा शुरू नहीं हुआ। इमरान खान भी इसी तरह के फसाद पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ सकते हैं तो मौजूदा हुकूमत से अलग होना मुश्किल नहीं। हुकूमती इत्तेहादी जमात MKM ने हुकूमत से अलहदगी का इंदिया दे दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, आज हमने सुप्रीम कोर्ट समेत मुल्क के तमाम फोरम्स पर बताया कि सिंध के साथ फिर ज्यादती की जा रही है। नरम मुदाखलत की आवाजें उठ रही हैं। सियासी जमातों को इलेक्शन पर राजी करने का माहौल बनाया जा रहा है। वफाकी वजीर जावेद लतीफ की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, बोले सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। पंजाब के इंतखाब के केस की फुल कोर्ट में समाअत का मुतालबा। अदलिया के खिलाफ बयानात शुरू, फौज के खिलाफ जल्द शुरू हो जाएंगे। अदलिया पर तनकीद करने वाले फवाद चौधरी ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा, 100 प्याज और 100 चीतर का मुहावरा जैसा नून लीग पर सादिक आता है, इसकी मिसाल मुश्किल से मिलती है। फौज और अदलिया को सियासत में घसीटना बंद करो। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी को जवाब, 100 अंडे और 100 छितर अब इमरान साहब का मुकद्दर हैं। इदारों को गाली और धमकी देने वाला इदारों का ठेकेदार न बने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने कहा, बेगम सफदर आवान गालम गलोज ब्रिगेड मैदान अमल में निकल आई। सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए धमकियां दी जा रही हैं। तलाल चौधरी जैसे बदनाम जमाना अदाकार जजेस के खिलाफ बोलने के लिए लॉन्च कर दिए गए। सोशल मीडिया पर इदारों को गालियां देने के पीछे फवाद चौधरी हैं। मुस्लिम लीग नून इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने पर यकीन नहीं रखती। अता तारड़ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले फवाद चौधरी की ज़ेर क़यादत PTI के ट्रेंड का सिलसिला आज भी जारी है। हो सकता है इमरान फॉरेन फंडिंग केस में फंदा टाइट होता देखकर मफावत की तजवीज़ दे रहे हों। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल ने अक्टूबर में आम इंतखाबात की तजवीज़ से लाइलमी का इजहार कर दिया। एहसन इकबाल ने कहा कि किसी भी कौमी मफावत में गैर मुल्की फंडिंग पर NRO शामिल नहीं हो सकता। जमात इस्लामी ने हुकूमत के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। सवात में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिराजुल हक ने कहा कि मुल्क में सिलेक्शन के बजाय साफ शफाफ इलेक्शन की जरूरत है, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि यहाँ ओहदे के लिए सेनेटर और मेंबरान असम्बली को खरीदा जाता है। तर्जुमान पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि तासुर आम हो चुका है कि लाडला अब भी लाडला है। किसी न किसी सूरत में कहीं न कहीं से लाडले को सहूलत दी जा रही है। लाडले को अदालत ने आइन शिकन और अमरीकी साजिशी बयानिया में झूठा साबित किया। मॉनसून की धुआंधार एंट्री, राजनपुर, लोरालाई, चित्राल सैलाब से तबाही,
कराची समेत सिंध भर में तेज बारिश से निज़ाम दरहम बरम, बिजली गायब और सड़कें ज़ेर आब आ गईं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तग़यानी, मूसलाधार बारिश से दर्जनों घर मुनहदिम, शहरी घरों में महसूर। महकमे मौसमियात के मुताबिक स्पेल 28 जुलाई तक रहने का इम्कान है। मुल्क भर में जारी बारिशों से तबाही का खतरा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम वफाकी और सूबाई हुकूमतों और इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी। मुश्किल सूरत हाल में सिंध हुकूमत की हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं हसन रऊफ। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आपका अपना गुड मॉर्निंग कोहिनूर। वो तो कहते हैं जी पीएचए वालों को आप ऑन कॉल ले लें तो वो कहते हैं हमने तो जितना खूबसूरत बना दिया लाहौर को बनाया। डॉक्टर नबीहा, ये तो पूरे लाहौर के शहरी देख रहे हैं कि ग्रीन बेल्ट का जो हाल हो रहा है। तो पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है, आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। पॉलिटिकल सिचुएशन इतनी अनसर्टन है कि इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट करना छोड़ दिया है। अभी इन प्रोसेसली पाकिस्तान में जो कपास की काश्त की जा रही है उसमें 2022 में कुछ नई टेक्नोलॉजीज भी इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं। महकमा ज़राअत जो पंजाब हैं उन्होंने बड़े अच्छे इकदाम किए हुए इसके लिए, इसकी जदीद टेक्नोलॉजी यानी कि हर चीज़ को कंप्यूटराइज करना। इदारों में बेज़ाब्तगियाँ तभी पैदा होती हैं जब वहाँ काम करने वाले अपने काम की नौइयत को समझते नहीं हैं। कि वो आपने जो बात की कि अपने ही गिराते हैं नशेमंद पे बिजलियाँ। सर इनके साथ फिर क्या किया जाता है, कार्रवाई क्या करते हैं और बाद में ये कहाँ जाते हैं? इनको रेस्ट करके हम फिर मान लेते हैं, फिर हम इनको इलाका मजिस्ट्रेट के पेश करके जेल में भिजवाते हैं। ये प्राइस कंट्रोल कमेटी, ये मजिस्ट्रेट जिनके ये काम है, ये क्यों नहीं देखते कि मुनाफाखोर जो है वो अपनी मुनाफा कमा रहे हैं? अगर आपने कोई चीज प्रोवाइड नहीं करनी तो आपको कोई हक नहीं है ये पूछने का। ये वो सवालात हैं कि जो हर जहन में है लेकिन जवाब किसी के पास मौजूद नहीं है। हाफिज साहब, इस वक्त जो हम यहाँ मामला लेकर बैठे हैं वो ये है कि हमारे पाकिस्तान में तलाक की रेशो क्यों बढ़ रही है। एक बेहतरीन ज़िंदगी जिंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मियाँ और बीवी हर मामले पर खुलकर बातचीत करें। देखिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग न्यूज़ से जुमा सुबह 10 बजे सिर्फ कोहिनूर न्यूज़ पर। कैनन होम अप्लायंसेस, जो बनाए आपके कुकिंग एक्सपीरियंस को और भी खास। क्योंकि कैनन होम अप्लायंसेस मिलकर बनाए हम सबका ड्रीम किचन। कैनन होम अप्लायंसेस, चले साल हर साल, कारकर्दगी बेमिसाल। इधर उधर दियां गल्लां छना आ जाना, सिर्फ लासानी दा तूत स्या प्लस मलट्ठी लेके आना। हेलो बाजी, सिर्फ तूत स्या नहीं बल्कि लासानी का दूध स्या प्लस मलट्ठी। तमाम दवाएं बच्चों से दूर रखें, खुराक लेवल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। अस्सलामु अलैकुम। बहलिया टाउन कराची में अब अपना घर बनाना हुआ बेहद आसान। गुज़िश्ता 20 साल से आपकी पेशे खिदमत फ्रेंड्स एसोसिएट्स लाया आपके लिए आसान इकसात पर अपना घर बनाने का सुनहरी मौका। सिर्फ 7,86,000 से अपना घर बुक करवाएं और 45,000 महाना से बकिया रकम की अदायगी करें, वो भी 3.5 साल की आसान इकसात पर। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 0337 3 901। सिर्फ रॉयल एसीडीसी फैंस में है टर्बो स्पीड और डिमर की भी जरूरत नहीं। परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। बदले हवा के रंग, रॉयल फैंस के संग। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। If you gone to a place और आपने वहाँ पर लड़का देखा, आपने क्या यार वहाँ है? मैं जाऊंगी, मैं उसे बताऊंगी ब्रो लाइक आई लाइक यू। You tell bro. तीन ऐसे टिकटॉकर्स जो आपको लगता हो कि वो बहुत इंस्पायरिंग हैं। जन्नत मिर्जा में आई थिंक बहुत पोटेंशियल है, मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी वीडियोस बनाती हैं। If you wake up घिसा पिटी चीज as मीरा जी,
हमने कोशिश की थी वो मीरा जी इनके साथ ही हमने बिठानी थी और वो समा हो नहीं पाया। मना कर दिया, शुक्र है। How was your childhood? My childhood was, I think we were 4 brothers and I was the youngest. अच्छा, so all boys house. हाँ, all boys house and they never wanted another boy. अच्छा, तो वो चाहते थे बेटी होए। जिस टाइम पे आप मीडिया में वो आप आई और घर वालों को क्या रिएक्शन? सबने कहा था you know your limits, so like don't cross them. मतलब I used to think कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ तो मैं तो जाऊंगी तो मुझे तो जाते साथ शूट मिल जाएगा। तो ये गलतफहमी आपकी दूर हुई कि कभी इस तरह हो कि रात की किसी पहर में आप इमोशनली इतने बह गए हो और यू डाइल्ड योर एक्स? नहीं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछें। देखिए प्रोग्राम चिट चैट विद मुस्तफा शाह इतवार की रात 10 बजे सिर्फ कोहिनूर टीवी पर। अलहमरा के अंदर भी ये ड्रामे होते हैं, तो यहाँ पर SOPs की जो है किस तरह इम्प्लीमेंटेशन होगी? It's a big question mark. बुलेटिन में खुश आमदीद। आपको सबसे पहले बताएं कि डिप्टी स्पीकर की रोलिंग के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत कल होगी। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी की रोलिंग के खिलाफ परवेज इलाही की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी स्पीकर की रोलिंग के खिलाफ केस की समाअत कल होगी। सुप्रीम कोर्ट और रेड जोन की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने का फैसला कर लिया गया। रेड जोन में एंटी राइट फोर्स तैनात की जाएगी। हफ्ता को लाहौर रजिस्ट्री ब्रांच के बाहर कारकुनों की बड़ी तादाद जमा हो गई थी, जिसके बाद सिक्योरिटी इदारों का अदालत उस्मा के बाहर फिर कारकुनों के जमा होने का इम्कान है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट और रेड जोन की सिक्योरिटी बढ़ा दी, जिसके बाद फैसला किया गया है कि पीर को किसी सूरत सियासी कारकुनों को सुप्रीम कोर्ट तक रसाई न दी जाए। रेड जोन में दाखिला ऑफिस कार्ड की बुनियाद पर ही दिया जाए। रेड जोन में कैदी वैन और वाटर कैनन भी रेड जोन में रखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब। हुकूमती इत्तेहाद का फुल कोर्ट के लिए पटिशन दायर करने का फैसला। हुकूमती इत्तेहाद और PDM जमातों के कायदीन पीर की सुबह 10:30 बजे मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम ऐलान करेंगे। PDM की हुकूमत जमातों और इत्तेहादी कायदीन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपने वकला के हमरा मुश्तरका तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब, सुप्रीम कोर्ट बार की नजरसानी दरख्वास्त और मुतलका दरख्वास्तों की एक साथ समाअत करने की इस्तदा की जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI फेज सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। MQM, ANP, BNP, बाप समेत दीगर इत्तेहादी जमातें भी दरख्वास्त गुजारों में शामिल हैं। अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक 5 सदूर का चीफ जस्टिस से नजरसानी दरख्वास्त फुल कोर्ट में भेजने का मुतालबा। साबिक सदूर सुप्रीम कोर्ट बार ने मजीद कहा कि अहम तरीन आईनी मुकदमात के तमाम फरीकैन को सुनकर एक साथ फैसला किया जाए। याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ हुक्मरान इत्तेहाद ने एक मुश्तरका एलामिया जारी किया था, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल से मुतालबा किया गया था कि वो वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन के मामले के हवाले से दायर दरख्वास्त को फुल बेंच में भेज दिए। हमें फुल कोर्ट चाहिए। सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान का 2 टोक ऐलान। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब इंतहाई अहमियत का हामिल है। हमारी जमात मामले में फरीक बनने का फैसला किया है। हम समझते हैं कि अदालत का वक़ार बहाल रहे और फैसलों को हर शख्स दिलो जान से कबूल करे। इमरान खान की पूरी सियासी जिंदगी एक झूठे बयाने पर खड़ी है। बात हो रही है, कल भी मैंने इस पर बात की थी कि रियासत कमजोर हो रही है, किसी बैरूनी दुश्मन के हाथों नहीं, हमारे अपने इदारों की सियासत में मुदाखलत की वजह से हुकूमती निजाम को मुस्तरब रखा जा रहा है। हुकूमत को हुकूमत करने दें।
हुकूमत ने एक चैलेंज के तौर पर इस निज़ाम को कबूल किया हुआ है। 4 साल गलाजतें कौम के ऊपर एक कोह गिरां बनकर जब ये लोग मुसल्लत रहे, आज उससे जब जाखलासी हुई है तो उन सारी मुश्किलात से निकलना एक चैलेंज है। लेकिन अगर मुदाखलत के नतीजे में हुकूमती निज़ाम मुस्तरब रहता है, कन्फ्यूजन रहती है, तो इदारे भी काम नहीं करेंगे, मालियाती इदारे भी काम नहीं करेंगे, इंतज़ामी इदारे भी काम नहीं करेंगे और आम आदमी भी अपने घर में परेशान और सरगर्दान रहेगा। तो इस एतबार से रियासत कमज़ोर हो जाती है और अगर रियासत कमज़ोर होती है तो मेरे ख्याल में फिर उस हवाले से मैं एक बात कहना चाहूँगा बड़ी वजाहत के साथ कि हमारे इदारों में यकीनन कुछ अफराद ऐसे हैं और रिटायरमेंट के बाद फिर वो एक्सपोज हो जाते हैं, पहले उन्होंने कवर लिया होता है। अब आपको बताएं कि गवर्नर हाउस में तकरीब हल्फ बर्दारी, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की 41 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब मलिकुर रहमान ने सूबाई वज़रा से हल्फ लिया। हल्फ लेने वालों में अली हैदर गिलानी, राना रमेश, इमरान नज़ीर, बिलाल यासीन शामिल। राना इकबाल, महर एजाज अचलाना, मलिक नदीम कामरान समेत दीगर वज़रा ने भी हल्फ लिया। आपको बताएं कि गवर्नर हाउस में तकरीब हल्फ बर्दारी, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की 41 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब मलिकुर रहमान ने सूबाई वज़रा से हल्फ लिया। हल्फ लेने वालों में अली हैदर गिलानी, राना मशहूद, इमरान नज़ीर, बिलाल यासीन, राना इकबाल, महर एजाज असलाना, मलिक नदीम कामरान समेत दीगर वज़रा ने भी हल्फ लिया। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहना है कि मुल्क में 2 असूल लागू नहीं हो सकते। पंजाब में वज़ारत आला के इंतखाब के मामले को सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच देख लेगा तो ये मामला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लाहौर रजिस्ट्री की दीवारें फलांगने के अमल का सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन नहीं लिया। मुकदमे की अहमियत को सामने रखते हुए फुल कोर्ट बनाया जाना चाहिए। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि ये बात करीने इंसाफ होगी कि अदालत का फुल कोर्ट इस दरख्वास्त को सुने। उम्मीद करते हैं कि चीफ जस्टिस साहब हमारी दरख्वास्त पर गौर फरमाएंगे। फुल कोर्ट के अलावा इसका कोई हल नहीं है। साहब, जनाब यासीन आज़ाद साहब, जनाब फजल हक अब्बासी साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब और सैयद कल्बे हसन साहब ने भी यही मुतालबा दोहराया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सरबराह जनाब एहसन भून साहब, जिनकी ये रिव्यू एप्लीकेशन है, और पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हफीज़ुर रहमान चौधरी साहब ने भी बयान जारी किया है अपने अपने इदारों की तरफ से कि ये मामला इस तरह का नाजुक और संजीदा मामला है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन इस तरह का है कि इसमें 2015-2018 में जो फैसले दिए गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जिनमें एक दफ़ा 8 रुकनी बेंच ने तशरीह की थी आर्टिकल 63A की, लगता है कि इस फैसले में उसको भी किसी हद तक नज़रअंदाज किया गया है। तो क्योंकि 8 रुकनी 5 रुकनी बेंच पहले भी इस पर बैठ चुके हैं, तो क्या ही बेहतर हो और ये करीने इंसाफ होगा कि अगर इस पर फुल कोर्ट बैठे और फैसला करे। फिर जो दरख्वास्त इस वक्त चल रही है उसमें जो फरीकैन हैं, उसमें मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज साहब के वकला भी अब ये बात करते हैं और कल एडवोकेट जनरल पंजाब ने भी यही बात की थी और वो अदालत के सामने भी रखने जा रहे हैं कि ये ज़रूर देखा जाए कि मुकदमे की अहमियत को सामने रखते हुए फुल कोर्ट बिठाई जाए। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी क्यों फुल कोर्ट बिठाई जाए। मैं ये समझता हूँ बतौर वकील और बतौर पाकिस्तानी शहरी के और एक जमहूरियत पसंद वोटर के माजी में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक जज साहब के बारे में रेफरेंस फाइल हुआ और फिर वो मामला चैलेंज हुआ कि क्यों ना आर्टिकल 209 के तहत इन्हें बर्खास्त किया जाए, तो उस पर भी फुल कोर्ट बना और फुल कोर्ट ने उस पर फैसला दिया। फिर नजर सानी की दरख्वास्त भी फुल कोर्ट ने सुनी। 12 करोड़ अवाम के मुंतखब नुमाइंदे को अगर अदालती फैसले के ज़रिए से घर भेजना है तो मैं ये ज़रूर समझूंगा कि जो ट्रांसपेरेंसी और इंडिपेंडेंस का ये तकाजा है कि अदालत इस दरख्वास्त को संजीदगी के साथ सुने और ये
करीने इंसाफ होगा कि अगर इसको तमाम जो अदालत के जज साहिबान हैं फुल कोर्ट के सामने रखा जाए, क्योंकि जो आर्टिकल 63A की तशरीह है उसके बाबत बहुत से वकला और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे और सोशल मीडिया पर इदारों को गालियां देने के पीछे फवाद चौधरी हैं। अताउल्लाह तालड़ का कहना था कि मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी के सरबराह के बारे में पहले कभी नहीं सुना। काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी के कौन से इजलास में फैसला हुआ, ये एक अहम आइनी और कानूनी नोयत का मामला है। इस मामले पर फुल कोर्ट बिठाने में कोई हर्ज नहीं। चौधरी शुजात हुसैन ने काफ लीग के अरकान को वाज़ेह हिदायत की थी कि हमजा शहबाज को वोट दिया जाए। पेशेदारों के खिलाफ ट्रेंड चलाया करता था और वहाँ से तौहीन आमेज ट्रेंड्स भी चलाए जाते थे, सोशल मीडिया पर कैंपेन्स भी लॉन्च की जाती थी। तो ये उनका काम है, आज भी चल रहा है। आज भी इदारों के सरबराहान का नाम लेकर सोशल मीडिया पे गालियाँ दी जाती हैं और पीछे फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। हमारा कभी भी ना इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, ना वफाकी वज़ीर इत्तलात, कभी ऐसी कोई ना कैंपेन लॉन्च की गई है। ये अब जिस तरीके से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं इसको मुस्तरद भी करते हैं। और मैं फवाद चौधरी साहब को कहना चाहूँगा कि आप जो ट्रेंड्स चलवा रहे हैं और आपको जहाँ से फंडिंग आ रही है और जो रोज़ आप बैठकर बातें करते हैं, चंद हफ्ते पहले ही जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की वो आवाम के सामने हैं। एक आप में ज़रूर खासियत है, इस वजह से आप हर वक्त पार्टियां भी तब्दील करते हैं। आपसे बेहतर खुशामदी मैंने नहीं देखा। ये आपकी बहुत बड़ी खासियत है, खसूसियत है। खामी भी है कि ज़िंदगी में कभी आपने सच नहीं बोला, ये आपकी खामी है। तो ये अब आपने कल को दोबारा जब पार्टी तब्दील करनी है तो जिन अलकाबाद से आज जिन लोगों को नवाज रहे, कल उनकी तारीफें भी करेंगे। मैं दोबारा कहूँगा, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी का सदरा होता है बाप की जगह होता है, डब्बू कभी एक ही अब्बू, इसको मलूज़े खातिर रखा करें। जहाँ तक बात है फुल कोर्ट की, उस पर बड़ी तफसील से बात हुई। देखिए, ये पिछला जो फैसला आया था जिसके तहत हमारे 25 वोट माइनस किए गए, वो 5 ऑनरेबल जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने किए थे। अब अगर यही 63A की तशरीह है तो फुल कोर्ट जो है वो इंसाफ के तकाजे पूरे कर सकेगा। और जिस तरह आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी फरमाया, ये रिवायात भी यही हैं कि जब ऐसे अहम कानूनी और आईनी मामलात हों तो उस पर फुल कोर्ट बिठाया जाता है। अब कल का जो ऑर्डर आया वो कल अदालत में भी बात होगी, मगर अभी तक चौधरी शुजात साहब का लेटर अदालत में पेश नहीं किया गया, उसको एग्जामिन नहीं किया गया। उसके साथ साथ जो पार्लिमानी पार्टी की पीटीआई की हिदायत थी, पीटीआई का लेटर मौजूद है, असद उमर साहब का ऑन रिकॉर्ड है, उसमें लिखा है कि इमरान खान साहब की हिदायत है कि परवेज राय साहब को वोट डाला जाए। उस लेटर की बुनियाद पे हमारे 25 लोगों के वोट काउंट नहीं किए गए। वहां पे कहां गई पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग और कहां गया पार्लिमानी लीडर? और देखिए, काफ लीग के पार्लिमानी लीडर का नाम भी किसी को नहीं पता। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। कैनन होम अप्लायंसेस, जो बनाए आपके कुकिंग एक्सपीरियंस को और भी खास। क्योंकि कैनन होम अप्लायंसेस मिलकर बनाए हम सबका ड्रीम किचन। कैनन होम अप्लायंसेस, चले साल हर साल, कारकर्दगी बेमिसाल। लासानी अर्के महजल के साथ, नाम भी लासानी, मयार भी लासानी। लासानी अर्के महजल, बिलीव मी इट वर्क्स। लासानी का डाइमैक्सो गैस, बदहजमी और निजाम हजम की इस्लाह के लिए ऑरेंज टेस्ट के साथ लासानी का डाइमैक्सो। तमाम दवाएं बच्चों से दूर रखें। खुराक लेवल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। फाइनली कल शिफ्ट हो जाएंगे। Can't wait. बस ये पंखे वहां लगवाने। Wait. मैं घर में पुराने जमाने के पंखे? No way. ओके। लाइफस्टाइल अपग्रेड किया तो फैंस क्यों नहीं? ये देखो,
Royal Smart Lifestyle. ACDC inverter fans. Permanent magnet motor से 50% बिजली बचेगी. Smart. Very smart. Such amazing features. जैसे ये 7-speed remote control. बिल्कुल noiseless. ये फीचर तुम में नहीं है ना? What? कुछ नहीं. See, Royal के stylish designs हर room को complement कर रहे हैं. बिल्कुल हमारी तरह. सुना है डिजाइनर फैंस हवा कम देते हैं. सिर्फ Royal ACDC fans में है turbo speed और dimmer की भी जरूरत है. Smart choice my queen. बदले हवा के रंग Royal fans के संग. Royal. साथ जिंदगी भर का. Canon वाटर डिस्पेंसर दे ठंडक का एहसास, बुझाए आपकी प्यास. दिलकश डिजाइन, बड़े वाटर टैंक और कूलिंग कैबिनेट के साथ Canon होम अप्लायंसेस चले साल हा साल, कारकर्दगी बेमिसाल. वेलकम बैक. अब आपको बताएं कि हमजा और शहबाज अपना सामान पैक कर लें. अक्टूबर नवंबर में हर सूरत इलेक्शन होंगे, कौम तैयारी कर ले. शेख रशीद का बड़ा दावा. बोले मुल्क को मुआशी बहरान की क़यामत से बचाने के लिए बहुत थोड़ा अरसा रह गया है. सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ लेकर जा रहा है. नून लीग अदलिया के खिलाफ एजेंडे पर निकली है. अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद का कहना है कि अगस्त से पहले हमें अहम फैसले करने होंगे, वरना शायद कोई भी हुकूमत ना चला सके. मजबूत रियासत होगी तो सियासत भी चलेगी. आज हमारे पास खाम माल की इंपोर्ट के लिए डॉलर्स दस्तियाब नहीं हैं. शेख रशीद ने सवाल किया कि अहम कानूनी मामले को छोड़कर अटॉर्नी जनरल मुल्क से बाहर क्यों चले गए. पंजाब चला गया तो वजीर आजम CDA का चेयरमैन रह जाएगा. उन्होंने कहा कि मुल्क को मुआशी बहरान की क़यामत से बचाने के लिए बहुत थोड़ा अरसा रह गया है. आज खाम माल की इंपोर्ट के लिए डॉलर दस्तियाब नहीं है. सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ लेकर जा रहा है. पंजाब उनके हाथ से निकल चुका है. रहनुमा PTI फरूख हबीब कहते हैं ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने नून लीग समेत दीगर तमाम को मुस्तरद कर दिया. ये मुस्तरद शुदा टोला अपनी करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है. इनसे कोई इदारा महफूज नहीं. जो है वो कानून और आइन की हाकमियत की इनकी आगे बात ना करें और ये तमाम इदारों को जो है अपना कुछ समझे ही ना. आपको याद होगा कि पनामा केस के दौरान जिस तरीके से इन्हीं के पार्टी के अराकीन, चाहे वो निहाल हाशमी हो, दानियाल अजीज हो, उस वक्त तलाल चौधरी हो, सबसे मरियम सफदर ने क्या क्या बयानात नहीं दिलवाए थे जजेस के बारे में, उनके ख़ानदान के बारे में, और बाद में उनको सजाएं भी जो है वो भुगतनी पड़ी थी. अब फिर से वो एक ट्रेंड जो है वो नज़र आ रहा है और उस ट्रेंड को अगर आप मद्देनज़र रखें तो आप ये इनका माजी का बैकग्राउंड किसी सूरत नहीं भूल सकते कि ये हमेशा इसी तरह कोशिश करते हैं कि दबाव क्रिएट करें, दबाव क्रिएट करके अपनी मर्जी के फैसले लें. और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोई भी साहिब इल्म मारूफ कानूनदान जो है, जो डिप्टी स्पीकर एक चाबी वाला खिलौने का उसने किरदार अदा किया, जितनी चाबी दे दी उतना उसने सबक पढ़ के आगे सुना दिया कि उसने आर्टिकल 63A(1)(b) की तशरीह भी खुद से गलत कर दी और जो सुप्रीम कोर्ट का 17 मई का शॉर्ट ऑर्डर है उसकी भी खुद से तशरीह गलत कर दी. अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि 179 वाला जो है वो आगे आ जाए और 186 वाले को आप घर भेज दें. कोई कानूनदान डिप्टी स्पीकर की उस गैर आईनी गैर कानूनी रूलिंग के दफा करने को तैयार नहीं है. इवन अब इनके अपने वकील जो केसेस में दफा में पेश हो रहे थे वो उसका दफा करने को तैयार नहीं है. तो थोड़ा सा आईना देखें और आप इस मुंह से अदलिया के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च की हुई है जिस तरह चौधरी साहब ने. साबिक वफाकी वजीर व रहनुमा PTI हमाद अजहर कहते हैं अवाम ने सियासी निज़ाम में मुदाखलत करके साजिश को नाकाम बना दिया. चोर दरवाजे से इक़्तिदार पर काबिज होने वालों को अवाम ने उठाकर बाहर फेंक दिया है. PDM ने पहले मुल्क की खुददारी बेची, फिर मईशत तबाह की. मजीद कहा कि यह अवाम को दबाने के लिए जुल्म
اور بربریت پر اتر آئے، اب مظلومیت کا چورن بیچتے پھر رہے ہیں۔ اسی کے ایک امور کے اوپر اور وزیر اعظم عمران خان کی آزاد خارجہ پالیسی کی وجہ سے ایک ایسے شخص کو وزیر اعظم بنایا گیا اور ایک ایسی جماعت کو جس کے پاس 342 کے ہاؤس میں صرف 85 نشستیں تھیں، ان کو وزیر اعظم ایک سازش کے ذریعے وزیر اعظم کے منصب پر فائز کر دیا گیا۔ اور اسی طرح پنجاب میں 3 ماہ سے ایک ایسا شخص وزیر اعلیٰ ہے جس کے پاس پنجاب اسمبلی میں اکثریت حاصل نہیں ہوئی، اور جو سندھ ہاؤس کے اندر یہ سارا کچھ کرنے کے لیے ہوا وہ سب آپ نے دیکھا۔ جو ان لوگوں کو مسلط کرنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ ہوا، ہمارے کارکن شہید کیے گئے، دہشت گردی کے پرچے ہمارے قائدین پہ کیے گئے، خواتین پہ، پورے ملک کی خواتین، صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں، عوام پہ، بچوں پہ ٹیئر گیس کے شیل برسائے گئے، وہ یہ جو 2 اشخاص تھے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ، باپ اور بیٹا، جن کے پاس نہ تو وفاق کے ایوان میں اکثریت تھی اور جو چھوٹا تھا اس کے پاس صوبے کے ایوان میں بھی آج تک اکثریت نہیں ہے، لیکن عوام کا مینڈیٹ چرا کے آج بھی وہ مسلط ہیں ان دونوں ایوان پہ، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ چند اور دن کی بات ہے، کل یا پرسوں میں یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس سارے کے بعد الیکشن کمیشن خاموش رہا، پاکستان تحریک انصاف پہ ظلم اور بربریت اور اس پوری قوم کی معیشت کے ساتھ جو کیا گیا وہ اسی طرح چلتا رہا اور ہم یہ سب کچھ سہتے رہے۔ پھر عوام نے، آپ سمجھ لیجئے کہ مداخلت کر دی اس سارے نظام کے اندر، اور عوامی مداخلت کے نتیجے میں یہ سازش اب ناکام ہو گئی ہے۔ اور ضمیر کے سوداگر، آپ نے دیکھا کہ پرسوں چوتھ ضمیر کے سوداگر جو ہیں وہ آ کے ڈیرے ڈال کے یہاں بیٹھ گئے، کبھی کسی کے گھر جا کے کسی کے گوڈے پکڑیں، کبھی کسی کے گھر چلے جائیں، لیکن ان کی تمام تر کوششیں ناکام ہو گئیں، کیونکہ ہر شخص کو پتہ ہے کہ اس وقت عوام کا رد عمل کیا ہے، اور کوئی جرت نہیں کر سکتا اس وقت عوام کے سامنے کھڑے ہونے کی، چاہے وہ ایم پی اے ہو یا ایم این اے ہو۔ اور جو ایم پی ایز اور ایم این ایز کھڑے ہوئے تھے عوام کے سامنے، نرم مداخلت کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، سیاسی جماعتوں کو الیکشن پر راضی کرنے کا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما و وفاقی وزیر جاوید لطیف نے کہا کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے۔ رات کے وقت سپریم کورٹ کی دیواریں پھلانگی گئیں، اسے جذبات کا اظہار قرار دیا جاتا ہے تو نون لیگ پر سپریم کورٹ کے حملے کے الزام کی معافی مانگی جائے۔ پالیسی ساز اداروں کو سوچنا ہوگا، پہلے اپنی کی ہوئی غلطی تسلیم کریں۔ اس کو اسائنمنٹ دیے ہوئے ہیں اور یہ صبح شام روز نئی بات کرتا ہے، روز نئے جھوٹ بولتا ہے، مگر کوئی اس کو پوچھنے والا اس لیے نہیں ہے کہ جب یہ کہتا ہے کہ جناب جنرل اور ججز کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں، تو آج قوم سوال کرتی ہے کہ ان 4 ماہ میں جو تم بار بار کہہ رہے ہو فیصلے کرتے ہیں بند کمروں میں، کوئی ایک فیصلہ ایسا آیا ہے جو آئین قانون سے ہٹ کر تمہارے خلاف ہو، اس کو کوٹ کرو۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کوئی فیصلہ آیا ہی نہیں اس کے متعلق، اس کے باوجود پرزوم کر کے صرف اندر کا خوف کہ آنے والے وقتوں میں یہ ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ باتیں وہ کر رہا ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، مگر ہم پچھلی تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، جیلوں کو بلا کر ہم آگے پاکستان کے لیے بڑھنا چاہتے ہیں، بڑھ رہے تھے، مگر جو بیریئر کھڑے کیے جا رہے ہیں راستے میں، ان کے ہوتے ہوئے جس مقصد کے لیے، بڑے مقصد کے لیے ہم نے قربانی دی تھی، وہ تھا پاکستان کا مالیاتی اداروں سے جو ڈیل ہونا تھی وہ ملکی مفاد میں ہو سکے تاکہ ملک دیوالیہ نہ ہو، اس کے راستے میں رکاوٹیں اتنی کھڑی کر دی گئی ہیں کہ آج وہ بھی فلفل کرنا ممکن نہیں نظر آ رہا۔ تو میں بڑے دکھی دل سے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ آج جو نظریہ نواز شریف کے محافظ ہیں اور جو سمجھتے ہیں 22 کروڑ عوام میں سے اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ نظریہ نواز شریف پاکستان کے بقا کی ضامن ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اپنے حق کے لیے اداروں کے باہر دھرنے دینا،
जत्थे लेकर जाना, अपने हक के लिए भी जो किसी का हक नहीं तो उसको दिया जा रहा है। अगर हमें अपने हक के लिए फिर इस तरह निकलना है तो लोगों ने आवाज दे दी है, लोग निकलना शुरू हो चुके हैं। मैं गुजारिश करूंगा आज भी कि अगर जमहूर की आवाज न सुनी गई और ये एहतजाज रहनुमा पीपल्स पार्टी शाहजहां मरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, साबिक वजीर आजम पीटीआई चेयरमैन इमरान न्यासी ने पै दर पे झूठ बोले हैं। अब मुल्क में लाडलेपन का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। मुल्क में नफरतें फैलाने का सिलसिला पहली दफ़ा शुरू नहीं हुआ। इमरान खान भी इसी तरह के फसाद पैदा कर रहे हैं। शाहजहां मरी का कहना था कि इमरान खान की पूरी ज़िंदगी झूठ पर मबनी है। फितना खान लोगों को लड़वा रहे हैं। पीटीआई के लिए अलग कानून और मुस्लिम लीग काफ के लिए अलग कानून है। पीटीआई के 20 अरकान को डी सीट भी तो इसी कानून के तहत दिया गया था। वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि आरिफ अलवी को सदर मुमलिकत की हैसियत से काम करना चाहिए। कासिम सूरी को उनकी रोलिंग पर समन नहीं किया गया। दोस्त मजारी को इनकी रोलिंग पर समन किया गया। उनका यह भी कहना है कि एक और शख्स था जो लंदन में बैठकर ऐसा करता था। आज उसकी तकरीर पर पाबंदी है। इसका सब कुछ खत्म हो गया। इमरान खान भी उसी तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ सकते हैं तो मौजूदा हुकूमत से अलहदगी मुश्किल नहीं है। हुकूमती इत्तेहादी जमात MQM ने हुकूमत से अलहदगी का इंदिया दे दिया। कन्वीनियर MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि मुल्क इस वक्त शदीद मुआशी मुश्किलात का शिकार है, जिसे बाहमी फैसलों से मिलकर ठीक करने की ज़रूरत है। जनरल वर्कर्स इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हमें इस सवाल का जवाब दिया जाए कि अंदरून सिंध और कराची में जहाँ पीपल्स पार्टी की यूसी थी वहाँ 20,000 अफराद की यूसी बना दी गई और हमारी यूसी 90,000 अफराद पर बनाई गई। ये कहाँ का इंसाफ है? 90,000 में तो 3 यूसीस बन सकती हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का मजीद कहना था कि आज हमने सुप्रीम कोर्ट की रिट समेत मुल्क के तमाम फोरम्स पर बता दिया है कि सिंध के साथ फिर ज्यादती की जा रही है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुकूमत MQM के मुतालबात जाली मरदमशुमारी के 4 साल बाद भी नई मरदमशुमारी करने पर राजी हो गई है। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। कैनन होम अप्लायंसेस, जो बनाए आपके कुकिंग एक्सपीरियंस को और भी खास। क्योंकि कैनन होम अप्लायंसेस मिलकर बनाए हम सबका ड्रीम किचन। कैनन होम अप्लायंसेस चले साल हर साल, कारकर्दगी बेमिसाल। इधर उधर दियां गल्लां छना आ जाना, सिर्फ लासानी दा तूत स्या प्लस मलट्ठी लेके आना। हेलो बाजी, सिर्फ तूत स्या नहीं बल्कि लासानी का दूध स्या प्लस मलट्ठी। तमाम दवाएं बच्चों पर दूर रखें। खुराक लेवल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। सिर्फ रॉयल ACDC फैंस में है टर्बो स्पीड और डिमर की भी जरूरत नहीं। परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। बदले हवा के रंग, रॉयल फैंस के संग। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। कैनन वाटर डिस्पेंसर दे ठंडक का एहसास, बुझाए आपकी प्यास। दिलकश डिजाइन, बड़े वाटर टैंक और कूलिंग कैबिनेट के साथ कैनन होम अप्लायंसेस चले साल हर साल, कारकर्दगी बेमिसाल।
बुलेटिन में एक बार फिर खुश आमदीद। जब कौमें अपना नजरिया और मकसद खो देती हैं तो वो जवाल पजीर हो जाती हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर इमरान खान ने गालिब का शेर शेयर करते हुए लिखा कि उनका ये शेर उस वक्त का था जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम बनने वाले थे। उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत के इक़दामात देखकर मिर्ज़ा गालिब का शेर आज सच साबित हो रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास। डिप्टी स्पीकर की गैर आइनी रोलिंग और अदलिया मुखालिफ मुहिम का जायजा लिया गया। बाबर अवान की केस से मुतालिक आइनी और कानूनी नुकात पर ब्रीफिंग। इमरान खान ने कहा कि पंजाब के अवाम का फैसला देखकर ऊंचे हथगंडों पर उतर आए। अदलिया के खिलाफ बयानात शुरू। फौज के खिलाफ भी जल्द शुरू हो जाएंगे। फवाद चौधरी की नून लीग पर तनकीद। अदलिया पर तनकीद करने पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। पीटीआई रहनुमा ने सोशल मीडिया पर कहा कि 100 प्यास और 100 छितर का मुहावरा जैसा नून लीग पर सादिक आता है, इसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। नून लीग ने एस्टैब्लिशमेंट की गोख से जन्म लिया। आपस में तय किया एक प्रो एस्टैब्लिशमेंट सियासत करेगा और दूसरा एंटी एस्टैब्लिशमेंट मंजन बेचेगा। फवाद चौधरी ने कहा कि यही फार्मूला अगली नस्ल में भी ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अब नून लीग को लगा कि इमरान खान के खिलाफ एस्टैब्लिशमेंट से नती होकर बड़ी गलती हो गई। मरियम नवाज अब एंटी एस्टैब्लिशमेंट चूरन बेचेंगी। इस स्कीम में खामी यह है कि 1990 वाले लोग अब नहीं और मुकाबला भी इमरान खान से है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि फौज और अदलिया को सियासत में घसीटना बंद करो। 100 गंडे और 100 छितर अब इमरान साहब का मुकद्दर है। इदारों को गाली और धमकी देने वाला इदारों का ठेकेदार न बने। इक़्तिदार में वापसी के लिए इन्हें इस्टेब्लिशमेंट या एंटी इस्टेब्लिशमेंट का खेल नहीं खेलने देंगे। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि किसी को भी आइन और कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। इमरान खान ने एतराफ़ किया कि 4 साल हुकूमत चलाने के लिए इदारों और एजेंसियों की मदद ली। हम किसी को भी धौंस, धमकी और गाली से इंसाफ का कत्ल नहीं करने देंगे। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का बयानिया आइन का बयानिया है और रहेगा। इमरान खान का निशाना इदारे हैं। उनकी क़यादत को ओहदों से उतरवाना, मुंह पर खून लगने की बात करके अब पाँव न पकड़ें। नून लीग और शीन लीग की मौजूदा सूरत हाल 100 प्यास और 100 छितर खाने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि बेगम सफदर आवान की गालम गलोच ब्रिगेड मैदान अमल में निकल आई है। सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए धमकियां दी जा रही हैं। तलाल चौधरी जैसे बदनाम ज़माना किरदार जजेस के खिलाफ बोलने के लिए लॉन्च कर दिए गए हैं। फयाजुल हसन चौहान ने मजीद कहा कि अब तो नून लीग भी फौरी इलेक्शन का मुतालबा करने की धमकियां देने लग गई है। जमात इस्लामी ने हुकूमत के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। सवात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिराजुल हक का कहना था कि 9 सालों में खैबर पख्तूनख्वा में कुछ नहीं बदला। खैबर पख्तूनख्वा बदअमनी और टारगेट किलिंग का शिकार है। अवाम को किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। उनका कहना था कि मुल्क में सिलेक्शन के बजाय साफ शफाफ इलेक्शन की ज़रूरत है, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि यहाँ पर ओहदे के लिए सेनेटर्स और मेंबरान असम्बली को ख़रीदा जाता है। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि PDM और PTI अवाम के लिए नहीं, आज से मेरा मौजूदा हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग है, क्योंकि मौजूदा हुक्मरानों की वजह से गरीब तबाह हो रहा है। हुक्मरानों को कौमी मसाइल और गरीबों का कोई एहसास नहीं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक PDM के तर्जमान हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि तासुर आम हो चुका है कि लाडला अब भी लाडला है। इस्लामाबाद ने जारी बयान में कहा कि किसी न किसी सूरत में कहीं ना कहीं से लाडले को सहूलत दी जा रही है। PDM तर्जमान ने यह भी कहा कि लाडले को अदालत ने आइन शिकन और अमरीकी साजिशी बयानिया में झूठा साबित किया। बदकिस्मती से कुछ किरदारों की जानिब से हौसला अफजाई अब भी हो रही है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब बात करें कुछ मौसम की। मानसून की धुआंधार एंट्री। राजनपुर, लोरालाई, चित्राल सैलाब से तबाही। बारिश बरसाने वाला मानसून सिस्टम सिंध पर भी असरअंदाज हो गया। तेज बारिश से निज़ाम दरम बरम हो गया। बिजली गायब, सड़कें ज़ेर आब आ गईं। अपर चित्राल में मूसलाधार बारिश से 7 घरों को मुकम्मल, जबकि मुतादिद घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा।
दर्जन से ज़्यादा माल मवेशी भी मलबे तले दब गए। कराची, लाहौर, पेशावर, आज़ाद कश्मीर, हैदराबाद, कोयटा, डीजी खान, सवात और मुल्क भर में मूसलाधार बारिश जारी। मामूलात ज़िंदगी मुतासर, शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। मुख्तलिफ इलाकों में तोयानी। रोलालाई में मकामी शख्स ने सैलाबी रेले में फंसे 4 अफराद की जानें बचा लीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशों का सिलसिला 28 जुलाई तक बरकरार रहने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क भर में बारिशों के पेश नज़र तमाम वफाकी और सूबाई हुकूमतों और इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की है कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट सूबाई हुकूमतों और इदारों की भरपूर मावनत करे, नशेबी इलाकों की आवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि मुश्किल सूरत हाल में विफाक सिंध हुकूमत को हर मुमकिन मदद फराहम करेगा। मुंतखब नुमाइंदे मुतल्लिक़ा इदारों के रेस्क्यू और रिलीफ के कामों की मौसर निगरानी करें। पाकिस्तान का श्रीलंका से मवाजना और मईशत पर मनफी तज्ज़िये दुरुस्त नहीं। गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद ने सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाली खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि अगले 12 महीने आलमी मईशत के लिए बहुत अहम है, लेकिन पाकिस्तान के पास IMF का कवर मौजूद है, इसलिए पाकिस्तानी मईशत इस वक्त इतनी कमज़ोर नहीं जितना लोग समझ रहे हैं। डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद ने कहा कि कोरोना से मुतासरा बेशतर ममालिक के मुकाबले में हमारे इशारे बहुत बेहतर हैं। हमारी तरक्की कोरोना से मुतासरा मईशत में सबसे बेहतरीन थी। गुज़श्ता साल हमारी तरक्की की शरह 6% रही और कोशिश है कि इस साल तरक्की की शरह मज़ीद बेहतर हो। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर इनायत हुसैन ने बताया कि पाकिस्तान के 9 मुल्की गैर मुल्की ज़खायर $9.3 बिलियन हैं, जिसे हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के ज़खायर इस वक्त वो सतह नहीं है कि हम परेशान हों, और सोशल मीडिया पर जो बेबुनियाद खबरें फैलाई जा रही हैं कि पाकिस्तान की मईशत के लिए तो डेमोस्ट्रेट ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान के ज़खायर की सूरत में हाल बेहतर है, जिसके ज़रिए हम कुछ माह आगे बढ़ सकते हैं। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक की खुसूसी कोशिशों से साल 2020 तक लाहौर डिवीज़न के 167 मुलाजमीन को ग्रेजुटी और उनकी अदायगी कर दी गई। तकरीबन 13 करोड़ रुपए की रकम रेलवे मुलाजमीन को अदा कर दी गई है। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक की खुसूसी कोशिशों से साल 2020 तक लाहौर डिवीज़न के 167 मुलाजमीन को ग्रेजुटी और उनकी अदायगी कर दी गई। तकरीबन 13 करोड़ रुपए की रकम रेलवे मुलाजमीन में अदा कर दी गई। चीनी सदर ने मकामी सतह पर तैयार करदा कोविड वैक्सीन लगवा ली। चीन में आला सियासी शख्सियात की सेहत के हवाले से खबरें अमूमन आवाम और मीडिया से पोशीदा रखी जाती हैं। तहम बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी हुकाम की जानब से इस खबर को अवामी सतह पर जारी करने का मकसद मुल्क में कोरोना केसेस की शरह में इजाफे के बायस बूस्टर डोज की मुहिम को फ़रोग़ देना है। चीन के नेशनल हेल्थ एंड कमीशन के नायब सरबराह जिंग यक्सन का कहना है कि आला हुकाम को कोरोना की वैक्सीन लगने का मतलब है कि चीन की आला क़यादत मकामी सतह पर तैयार की गई वैक्सीन से मुतमईन है। याद रहे कि चीन ने कोरोना के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना रखी है। मुल्क में बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्टिंग और आइसोलेशन पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाता है, जबकि ज़्यादा कोरोना केसेस वाले इलाकों में लॉकडाउन भी नाफिज कर दिया जाता है। यमन में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से 10 अफराद जाँ बहक। दारुल हुकूमत सेना से मिलने वाली इतलात के मुताबिक यमनी हुकाम ने बताया है कि तूफ़ानी बारिशों और इसके बायस पैदा शुदा सैलाबी सूरत हाल से मुख्तलिफ हादसात में 4 बच्चों समेत 10 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। यमनी हुकाम का मजीद कहना है कि जाँ बहक होने वाले 4 बच्चे 3 मंजिला इमारत से गिरने से मौत का शिकार हुए। हुकाम के मुताबिक सैलाबी रेले में गाड़ी बहने से दीगर 6 अफराद भी जाँ बहक हुए। श्रीलंका ने पहली इनिंग्स में 6 विकेट के नुकसान पर 315 रन बना लिए। गॉल स्टेडियम में जारी मैच में मेजबान टीम की कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। श्रीलंका की जानिब से चंद जमल 80 और शार्डा फ्रेंडो 50 रन की नुमाया इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद नवाज तो नसीम शाह, नौमान अली और यासिर शाह ने 1-1 विकेट हासिल की। याद रहे कि दूसरे टेस्ट मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बरतरी हासिल है। कोहिनूर न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।
آپ تمام دیکھنے والوں کی سننے والوں کی رہنمائی قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں کرتے ہیں. میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے. اچھا جی. ایک تو میں اوپر ہو گئے, میں جاب لیتا ہوں. اول آخر درود و سلام پڑھ کے 50 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنے پہ آپ دم کر لیں. بیٹے کیا مسئلہ, وہ 7 سال کا ہو گیا تو اس کو نا چڑچڑاپن بہت زیادہ ہے, دماغی طور پر بھی اس کو علاج کروایا بہت زیادہ. 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھ کے نا وہ شہد پر دم کر لیں. شہد میں بھی حضور نے فرمایا شفا ہے.